Hello everyone, कैसे हैं आप सब? My name is Maha Said and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and आज first in-person event है in Northeastern University which is movie night. So I went there and it was really good. So I just wanted to share few things with you. लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आपसे रिगार्डिंग द PGWP एंड कोप. सो आई वांटेड टू शेयर समथिंग मोर अबाउट द कोप. तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो द मूवी नाइट वॉज वेरी गुड. बहुत मज़ा आया. स्टूडेंट्स थे काफ़ी एंड दे ऑल वर वेरी एक्साइटेड. मेरी फ्रेंड्स भी काफ़ी आई हुई थी. And we watched Turning Red and it was a really nice movie. It was funny and it was like overall too good. So the things which I wanted to discuss with you is about the COPE. जो एक point रह गया था वो ये था कि most of the students don't know that when you apply for your study permit, NEU provides COPE obviously. So आपके लिए COPE आप तभी कर सकते हैं when you have work permit. That's work permit is not for full time. It is related to COPE. उसको भी work permit ही कहते हैं. But that is basically your university का नाम लिखा होता है and that is basically your COPE permit. तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता बिफोर कमिंग टू कैनेडा. सो काफ़ी स्टूडेंट्स को मुझे कोप मिल गया था व्हेन आई लैंडेड हेयर. तो मुझे अपने स्टडी परमिट के साथ ही कोप मिला था. एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी IRCC एज आई मैंशनड. नथिंग इज़ सेम ओवर हेयर फॉर एनीवन. एंड और मुझे अपने सीनियर से पता चला कि जब वो आए थे उन्होंने स्टडी परमिट के साथ उनको कोप नहीं मिला था और उन्होंने यहाँ आके अप्लाई किया. एंड कोविड की वजह से इट टुक अराउंड 6 months टू गेट द कोप परमिट. एंड आपके पास अगर कोप परमिट नहीं होगा देन यू कांट डू कोप. दैट इज़ सिंपल. And the other thing was you can also apply simply while applying for the study permit. आप easily अपने कंसल्टेंट को कह सकते हैं कि वो आपका कोप का भी अप्लाई कर दें. और अगर नहीं तो once you come over here तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर कोप परमिट. इट्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड हमारी इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड scholar advisor है Jiang Crystal. So she will guide you through everything, through the immigration processes, pre-departure and from arrival as well. And she will also guide you कि आपने कैसे खुद अप्लाई करना है for your COPE. So once you arrive here आप जो हमारी as I mentioned मैम हैं आप उनको email कर सकते हैं and she will tell you about everything. एक्चुअली आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए होती है परमिशन. देयर इज़ अ परमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विच रिप्रेजेंट्स के येस यू आर रजिस्टर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी. एंड देन you can easily apply. In the next videos I can tell you in detail how to apply for the COPE. आप खुद easily apply कर सकते हैं. और एक और जो पॉइंट था आप COPE के लिए एलिजिबल हो. द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आप COPE के लिए एलिजिबल हो when you have a GPA of 3 or more and you have completed your 20 credit hours which makes around I think 3 quarters. So after 3 quarters and you have 20 credit hours and your GPA is 3, you are obviously eligible for COPE. Once you search for COPE, then you have to get the approval from the CPS department as well, CPS COPE department as well. And it takes around 3 weeks to get approval. It is better कि आप जितनी जल्दी ऑफ़र लेटर आपको COPE का मिल जाएगा from your employer. And then you can submit it to the COPE department. You can email them and they take around 3 weeks as mentioned in their website. Or this is what our COPE advisor says as well.
ओके, सो द अदर पॉइंट इज़ कि आप लोग दो कोप्स कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कोप मिला है जिसकी ड्यूरेशन होती है अराउंड 3 months. सो यू कैन डू फॉर 6 months. आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर है आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने एक और कोप करना है, इफ़ दे हैव अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर कोप. Otherwise you can search for like another cope in another company and you can do that as well. But you have to remember one thing कि जो कोप होता है वो आप अपने लास्ट क्वार्टर में या लास्ट टर्म में नहीं कर सकते. So total there are around I think 5 quarters and 5 quarters होते हैं. So like you can't do in your 5th quarter, you can't do cope in your 5th quarter, you have to do it in your like 4th quarter. And in case if you are doing it like 6 months का, तो आप क्या करेंगे, आपके 6 quarters हो जाएंगे. It does not make any difference. The only point which you have to keep in mind is कि आप last quarter में अपना cope नहीं कर सकते. और it is बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए. इवन कि मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग था ये समझना कि कब कोप स्टार्ट होगा, अप्रूवल कब होगा, डेडलाइन क्या है कोप की, हाउ द क्वार्टर सिस्टम वर्क्स. इसके बारे में भी मैं सारी वीडियो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. बिकॉज ऑनेस्टली 3 months तो ऐसे ही गुजर जाते हैं यही समझने में like how does the quarter system and all the deadlines work. And the other thing is if you are coming in fall, तो आपका जो कोप स्टार्ट होगा like obviously it will start in the next fall 3 quarters गुजरने के बाद. और आपको अपना कोप जो आपने फाइंड सर्च शुरू करनी है अपने कोप के लिए, दैट इज़ 4 months बिफोर. बिकॉज़ यहाँ कनाडा में जितने भी एम्प्लॉयर्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, वो 4 months पहले ही पोस्ट कर देती हैं अबाउट द जॉब्स, अबाउट द कोप अपॉर्चुनिटीज़. ऐसा नहीं है कि आप कहो कि हाँ मेरा सितंबर में स्टार्ट होना है कोप, सो आई विल सर्च ऑन इन अगस्त एंड तब आप बस रैंडमली रेज्यूमेज एंड कवर लेटर सबको सबमिट कर दोगे. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. आपको एटलीस्ट 4 months पहले अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है एंड नेटवर्क्स बिल्ड करने हैं एंड कनेक्शंस बनाने हैं, तभी जाके यू विल गेट अ गुड कोप. एंड द लास्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू ऐड, सॉरी अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इट्स जस्ट अबाउट गिविंग यू इंफॉर्मेशंस. सो द लास्ट पॉइंट इज़ कि जो अगर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, दे आर लाइक काफ़ी सीनियर्स भी हैं, दे आर लाइक कि हमें बस 15 months की डिग्री हम कंप्लीट करते हैं, वी डोंट हैव टू डू कोप एंड like डिग्री ख़त्म हो जाएगी, then we will be able to do full time job and everything. But I have seen both of my seniors. एक मेरी सीनियर हैं जो कोप कर रहे हैं एंड रिसेंटली एज आई मेंशन बात हुई थी एंड दे वर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि लाइक एवरीथिंग इज़ हर रेज्यूमेज, हर कवर लेटर्स आर प्रोफेशनली बिल्ड अप. एंड वो मुझे कह रही थी दैट उनको किसी भी चीज़ की अब टेंशन नहीं है. जैसे ही उनका ये कोप, उनकी डिग्री ख़त्म होगी, शी विल डेफिनेटली गेट अ फुल टाइम जॉब. बल्कि उनको अभी से ही फुल टाइम जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आ रही हैं. सो ऑन द अदर हैंड जिस सीनियर ने नहीं किया था कोप, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन लाइक दिस ऑड जॉब्स सच एज वॉलमार्ट, टिम हॉर्टन्स, और उनको काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्टिल. बिकॉज अगर आप कोप करते हो, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बिल्डअप हो जाता है, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, आपके कनेक्शंस बिल्डअप हो जाते हैं. सो overall I feel that you have to do cope and it will be a good opportunity for you. So I think I have told everything regarding the cope. So ये थी आज की वीडियो. I hope you liked it. So please do subscribe and like my video. So मिलते हैं next time. तब तक के लिए bye.